Good morning, all of you. Good morning. Please sit down. My name is Jitendra Srivastav. I am working as assistant professor in Ashtavakra Institute of Rehabilitation Sciences and Research. What is the merits? Tell me, what is the merits? All of you are aware with there are certain kinds of merits of special education. विशेष शिक्षा के कुछ हमारे क्या हैं merits भी हैं और कुछ हमारे क्या हैं demerits भी हैं. Now let us divide this class into two groups, right? One is a merit side and second one is a demerit side. You all are aware. So who want to start first? What are the merits? Tell me. This one is a row for merits? No, this one is a row for merits. Now tell me what are the merits of special education? Any one of you. One by one, please. One by one. Yes, Preeti. Provide individualized learning. Provide individualized learning. Very nice. One topic. Second one. Second one. Development of social skills. Development of social skills. Now wait a while. One point is there, development of individualized education plan, and second one is what? Development of social skills. Development of social skills. See, these are the, sit down please. These are the very important thing whenever we are focusing on special education. विशेष शिक्षा के ऊपर अगर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो उसके ऊपर उस बच्चे की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखना जरूरी है. और उस विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए प्रीति ने जैसे बताया हम किस चीज के ऊपर प्लान बना रहे हैं उसका इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान्स. व्हाट इज इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान्स? प्रीति प्लीज टेल मी. Special education offers teaching based on each child's strength, habits, and learning style. Very good. One is a strength. Next one is strength. Next one is topic. Early identification and support. Okay, please sit down. See, whenever we are planning to make an IEP of a child, we have to focus on various things. Various things includes what? Various things includes the individual needs of that child, right? उस बच्चे की विशेष शिक्षा के लिए उसकी व्यक्तिगत जरूरतें क्या हैं, उसके बिना हम केंद्रित ध्यान रखते हुए हम उस बच्चे का आईपी डेवलपमेंट नहीं कर सकते. सेकंड पॉइंट इज अ सोशल आइसोलेशन, राइट? अगर हम उस बच्चे को एक आईपी डेवलप करवाएंगे स्पेशल एजुकेशन के लिए तो उस बच्चे का हमें सोशल आइसोलेशन क्या करना है, हमें फिनिश करना है, जिससे कि वो बच्चा अपने आप को समाज से अलग ना समझे. These all are the merits, right? Third one, anyone? Please tell me. Third one, the merits. Yes, tell me. What is the third next one? Merits. Sir, it promotes social development. Very good. It promotes the social development. See, अगर उस बच्चे को विशेष शिक्षा के अंदर अगर हम उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं तो उसका सोशल इंटीग्रेशन होगा. इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? Then these students will also be a part of a special classes. Special classes what? Today we are in the inclusive education. समावेशी शिक्षा. और उस समावेशी शिक्षा के अंदर उसके भी समान अधिकार हैं उस इंक्लूसिव क्लासरूम में बैठने के लिए. अगर हम उस बच्चे को सेग्रीगेट कर देंगे, अलग कर देंगे स्पेशल स्कूल्स के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि उस बच्चे का प्रॉपर इंक्लूजन नहीं हुआ. और अगर जब बच्चे का प्रॉपर इंक्लूजन नहीं हुआ, मीनिंग देयर बाय देयर इज अ सोशल आइसोलेशन. एंड सोशल आइसोलेशन इज व्हाट? हमें उस सोशल आइसोलेशन को किस चीज में कन्वर्ट करना है? सोशल इंटीग्रेशन के अंदर. वेरी नाइस. प्लीज सिट डाउन. नाउ मूव ऑन विद द डीमेरिट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, राइट? अगर हमारे पास कुछ एक पक्ष है तो दूसरी तरफ उसके क्या है, दूसरा पक्ष भी है हमारे पास. देयर आर सर्टेन डीमेरिट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन आल्सो. यस और नो? यू ऑल एग्री और नॉट? यस. नाउ टेल मी Anya Singh, what are the demerits of special education? Sir, social gap in inadequate funding, specialized devices, and inaccessible environment are significant barriers. Very good. Tell me point one by one, right? Okay. First point, Sir, repeat. inadequate funding. Inadequate funding, right? The demerits of a special education, as Anya Singh told, inadequate funding. There are certain channels, right? There are government protocols. There are certain levels where the funds move. हर एक का चरण है जिसके अंदर जो पैसा एलोकेशन है, भारत सरकार से जो पैसा मिलता है वो हर एक चरण के अंदर वो पैसा आगे बढ़ता है. एंड डेफिनेटली उस चरण के अंदर आगे पैसा बढ़ते 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 डेफिनेटली जो हमारे पास जो फंडिंग है वो एट द रूट लेवल एडिक्वेट नहीं हो पा रही है. एडिक्वेट का मतलब क्या है? देयर इज अ नेसेसिटी
कि एक्चुअल में उस कोष में, उस फंड के अंदर लिमिट कितनी है और उसके अंदर जरूरत कितनी है। तो फर्स्ट वन पॉइंट इज लिमिटेशन इज इनएडिक्वेट फंडिंग, पैसा पूरा नहीं पहुंच पा रहा। सेकंड पॉइंट स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस। सी द नेक्स्ट चैलेंज इज हमारे पास टेक्नोलॉजी, राइट, द टेक्नोलॉजी, द डिवाइसेस दैट वी यूज। हम आज जानते हैं कि वी ऑल आर वर्किंग इन द एआई जनरेशंस, राइट, वी आर हेल्प्ड बाय द एआई टूल्स, but whenever we are talking about for a special students, they are lacked by the certain technologies। जब पैसा उनके पास पहुंच नहीं रहा, उनके पास जो एडिक्वेट टेक्नोलॉजी का यूज जो हमारा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, राइट, in developed countries you all are aware there are so many AAC devices are there, augmented and alternative communication। आने सिंह आप जानते हैं ऑल्टरनेट एंड ऑगमेंटेड कम्युनिकेशन के टूल्स हमारे पास यूज किए जाते हैं, उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि हमारे स्पेशल स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट एट द मास, एट द लार्ज मिल सके। एम आई करेक्ट और नॉट? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आप बता सकते हैं आन्या सिंह, हमारे पास एक HI वाले स्टूडेंट के लिए, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए, आप सब भी बता सकते हैं, राइट, एक HI वाले बच्चे के लिए हम क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं जिससे कि जो मैं बोलूं और बोलते समय कुछ चीज लिख जाए, जिससे कि अगर वो बच्चा सुन नहीं पा रहा तो वो देख के कुछ समझने का प्रयास करे। बता सकते हैं क्या हो सकता है? एनी वन ऑफ यू? वेरी गुड, आन्या सिंह ने बताया क्या? कैप्शनिंग। कैप्शनिंग का मतलब बताइए, कैप्शनिंग कोई एनी वन ऑफ यू बताइए कि कैप्शनिंग होती क्या है? हमें नहीं पता है कैप्शनिंग क्या है। यस आन्या सिंह, कैप्शनिंग का क्या मतलब होता है? जैसे हम लोग न्यूज पे देखते हैं, जो एंकर होता है वो डिक्टेट कर रहा होता है कुछ भी, तो उसके नीचे लाइक टेलीविजन पे या फिर जहाँ पे हम देख रहे हैं, नीचे कैप्शनिंग जो भी वो बोल रहे होता है वो लिख के आता है। सो आई गेस इट्स हेल्पफुल फॉर CWH। That you see in only in news or somewhere else also? Everywhere I guess। Where you can see that? Tell me. और कहाँ दिखता है ऐसा? In videos also, in movies also, you see number of a caption, speech to text, speech to text things are there। जब आप YouTube के अंदर भी अगर आप चीज देते हैं, there are an option of CC, closed captioning, and closed captioning is what? वहां पे उस समय जो भी कुछ बोला जा रहा है उस चीज में लिखित रूप में उस वीडियो के नीचे अवेलेबल है, सो दैट एक HI वाला स्टूडेंट जो है अगर वो सुन नहीं पा रहा, हो सकता है वो बच्चा क्या हो, हमारा हार्ड ऑफ हियरिंग भी हो सकता है वो बच्चा हमारा क्या हो, हार्ड ऑफ हियरिंग हो, और अगर हार्ड ऑफ हियरिंग है तो उस बच्चे को कुछ उसका टेक्स्ट फॉर्म के अंदर सामने इम्प्रिंट दिखता है तो वो समझने की कोशिश करता है। एंड दैट थिंग इज आल्सो अवेलेबल इन मूवीज आल्सो। जब आप एक थिएटर्स में जाते हैं, मूवीज देखते हैं, तो मूवीज के अंदर भी हमारे पास कैप्शनिंग अवेलेबल होता है, राइट। नेक्स्ट वन सर, एक्सेसिबल एनवायरनमेंट। एक्सेसिबल एनवायरनमेंट, आन्या सिंह प्लीज सिट डाउन नाउ, राइट, बाकी सब भी बोलेंगे इसके अंदर। सेकंड थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया क्या? एक्सेसिबल एनवायरनमेंट, राइट। एक्सेसिबल एनवायरनमेंट क्या होता है? आप में से कोई बता सकता है इसमें? एक ऐसा वातावरण बनाना, हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जिसमें सब चीज अवेलेबल हो, है ना? बताइए क्या होता है एक्सेसिबल एनवायरनमेंट, क्या हो सकता है? सर, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जिसमें बच्चे की अच्छी लर्निंग हो सके, उसको चीजें सिखा सके। वेरी गुड, ऐसे एनवायरनमेंट में क्या क्या होना चाहिए? सर, एक तो पीयर्स का सपोर्ट होना चाहिए। वेरी नाइस, एक इन्होंने क्या बोला? सपोर्ट ऑफ अ पीयर्स। पीयर्स क्या होते हैं हमें नहीं पता। सर, जो हमारे साथ होते हैं, हमारे फ्रेंड्स वगैरह, जिनसे हम चीजें सीख सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, नंबर वन क्या बताया इन्होंने? पीयर इंक्लूजन। पीयर हमारे पास जो होना चाहिए, साथ में उसके साथ इंक्लूजन का पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वन, एक अच्छा टीचर होना चाहिए जो हमें वेरी support नाइस। कर सके। हु इज द परफेक्ट टीचर अकॉर्डिंग टू यू? Special educator। Very nice. See, we cannot say any teacher is a perfect, right? But in our special field, हम स्पेशल फील्ड में ये बोलेंगे एटलीस्ट वो हमारे पास क्या होना चाहिए? रिहैब फील्ड से होना चाहिए, रिहैब क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उनके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। इसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास पर्सोनल्स, राइट, क्वालिफाइड पर्सोनल्स मस्ट बी देयर फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, फैमिली इन्वायरमेंट होना चाहिए। फैमिली इन्वायरमेंट। सी, बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया क्या कि फैमिली इन्वायरमेंट होना चाहिए। यू टेल मी, फैमिली इन्वायरमेंट कैसे बनाएंगे आप? सर, मतलब बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है जो, और उसको स्कूल में सिखाया जा रहा है टीचर्स के द्वारा, बच्चों को पेरेंट्स उस चीज को रिपीट करवाएं और अच्छे से सिखाएं। अच्छा, पेरेंट्स उसको रिपीट करवाएं। पेरेंट्स रिपीट करवाएंगे कैसे, ये बताइए। पेरेंट्स को वो जानकारी मिलेगी तो वो कैसे मिलेगी? सर, वो टीचर से इंटरेक्ट। परफेक्ट। और वो टीचर को अगर आपने बताया, वो टीचर हमारा कौन होना चाहिए? स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। और स्पेशल एजुकेटर होने के लिए वो कौन सा कोर्स करेगा? यहां से बोलिए। डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन
स्पेशलाइजेशन में भी डिफरेंट, राइट? एज अकॉर्डिंग टू यू, योर स्पेशलाइजेशन इज व्हाट? हियरिंग इम्पेयरमेंट। सी, यहाँ पे एक चैनल हमारे पास बन के आ रहा है कि हमारे पास जो क्वालिफाइड पर्सोनल्स हैं, दे आर बी सपोज्ड बाय द क्वालिफिकेशन, एंड क्वालिफिकेशन इज अप्रूव्ड बाय व्हाट? क्वालिफिकेशन इज अप्रूव्ड बाय द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई। आरसीआई सबको पता है नाम? प्रीति, क्या नाम है उसका? नहीं, हमें आवाज आ रही। हाँ हाँ, व्हाट्स योर नेम? स्टैंड अप प्लीज। प्रणय। आरसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। वेरी नाइस, प्लीज सिट डाउन। एज यू ऑल आर अवेयर, प्लीज सिट डाउन यू टू। आपको पता है कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन क्या है, हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है, एंड यू आर इन द सेकंड ईयर, राइट? यू आर डीलिंग विद द पेपर नंबर 8, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी, राइट? Topic of today's class is merits and demerits. We are done with the merits and we are done also with the demerits also, जिसके अंदर हमारा सोशल आइसोलेशन आपने देखा, सोशल हमारे पास क्या हुआ, इनएडिक्वेट फंडिंग देखी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे आपने क्या बताया था? डीमेरिट्स में क्या बताएंगे? एनी वन ऑफ यू? हाँ प्लीज, व्हाट्स योर नेम? भूमिका। यू आर फ्रॉम विच कोर्स? वेरी नाइस, प्लीज टेल मी योर पॉइंट। Limited resources, I think we are done with that, right? Limited resources are there. Next point, any one of you? Yes. Sir, What's your name? My name is Himanshi. Himanshi. And my point is dependence on support. Very nice. See, in terms of a special education, the special students have to depend on the certain things, right? Please sit down. Please sit down. The number of things. For example, their peer groups, their acceptance in the society, द एक्सेप्टेंस ऑफ द फैमिली। फैमिली का एक्सेप्टेंस भी होना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, द एक्सेप्टेंस बाय द अदर पीपल्स। और याद करिए, अदर पीपल्स में हमने क्या बताया था एक टर्म? स्टेक होल्डर्स। आर यू अवेयर विद दैट? स्टेक होल्डर्स हम आज भूल गए हैं। हमें बताइए, हु आर द स्टेक होल्डर्स? टेल मी, एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू। स्टेक होल्डर्स कौन कौन थे जो कि एक हमारे बच्चे के साथ उसकी मदद करने में आगे बढ़ सकते हैं, एक एचआई वाले बच्चे के साथ? यस ना? बताओ जी, कौन कौन हो सकते हैं? कोई भी बताओ। जैसा इन्होंने बताया, क्या एक तो बताया कौन सा? स्पेशल एजुकेटर्स। नेक्स्ट क्या बताया था आपने? फैमिलीज। वेरी नाइस। कम्युनिटी का पूरा नाम बताइए प्रीति, क्या बताया आपने? कम्युनिटी। और उस कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए आप कौन सा प्रोग्राम करते हैं? कम्युनिटी बेस। नहीं, आवाज नहीं आई हमें। परफेक्ट, CBR। और CBR का आज हमने एक नया टर्म और क्या बताया था, जो हमारे पास एक न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या? कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। याद करो, हमने आपको एक टर्म लिखवाया था, क्या? CBID। CBID। ऐसे अधिकार जो कि हमारी कम्युनिटी के अंदर ऑल टाइम अवेलेबल होना चाहिए, ऐसे अधिकार उन स्पेशल बच्चों को मांगने नहीं है। मांगने क्यों हैं? जब वो अधिकार भले चाहे हमारी सोसाइटी के हों, भले चाहे फैमिलीज के हों, भले ही चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, भले ही चाहे हमारे एम्प्लॉयमेंट के अंदर हो, भले ही चाहे हमारे पास एजुकेशन के अंदर हो, दे ऑल मस्ट बी एम्बाइडेड इन दैट एनवायरमेंट। उस एनवायरमेंट के अंदर वो सब चीजें ऑलरेडी होनी चाहिए। एक बात बताइए, अगर वो चीज सोसाइटी में ऑलरेडी है बट स्टिल अवेयरनेस इज नॉट देयर, अवेयरनेस इन द सोसाइटी इज नॉट देयर। सी, हर एक सोसाइटी के अंदर हर एक तरीके का व्यक्ति रहता है, जिसके पास कोई जानकारी होती भी है और कुछ जानकारी नहीं भी होती। तो एक बात बताइए, एज अ स्पेशल एजुकेटर, एज अ स्पेशल ह्यूमन बीइंग, राइट, दोज यू आर टेकिंग द ओथ। हम एक शपथ ले रहे हैं कि हाँ, हम उस स्पेशल बच्चे के साथ काम करेंगे, और काम इस तरीके से करेंगे सो दैट वी कैन मेक सर्टेन चेंजेस इन हिज और हर लाइफ। उसकी लाइफ के अंदर हमें बदलाव लाना है, लेकिन उस बदलाव लाने के लिए हमें कुछ शिक्षा को सीखना भी पड़ेगा। हमें उस सीबीआर के कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के कुछ रूल्स भी हमें पता होने चाहिए कि एक्चुअल में उस सीबीआर के अंदर मुझे क्या क्या पूछना है, मुझे क्या क्या बताना है। एक बात बताइए, जब आपने सीबीआर किया, सीबीआर के अंदर एक टर्म यूज होती है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। यस, क्या होता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट? एनी वन ऑफ यू? यस, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। और उसमें एक टर्म आता है बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यस, यू टेल मी, क्या होता है बेंचमार्क डिसेबिलिटी? सर, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वो होती है किसी भी पर्सन या फिर किसी भी बच्चे में एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। भाई, एक यहाँ पे वर्ड आया एटलीस्ट, कम से कम।
अगर उसमें 39%, व्हाट्स योर नेम? हिमांशी। हिमांशी एक बात बताइए, अगर उस बच्चे के अंदर 39% ऑफ डिसेबिलिटी है तो क्या हम उसको एज पर RPWD एक्ट 2016, राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के हिसाब से whatever the benefits those who are associated with benchmark disabled peoples, क्या हम उसको वो बेनिफिट दे सकते हैं फिर उसको, अगर उसके पास 39% ऑफ डिसेबिलिटी है? यस प्रीति, हमें आवाज नहीं आई। नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे एक भारत सरकार के कानून में लिखा हुआ है कि कम से कम उनके पास 40% की डिसेबिलिटी होनी चाहिए। वो डिसेबिलिटी आएगी कहां से, वो कहां लिखी होगी? जिस जगह पे लिखी होगी उसको कहा क्या जाता है? एक सरकारी कागज, और वो कागज क्या कहलाता है? डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। उसका भी एक प्रोसीजर होता है, उसका भी एक प्रोसीजर होता है। चलिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी बन गया, मान के चलते हैं, मान के चलिए 60% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन गया, एंड एज पर RPWD एक्ट 2016 उनको वो सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो कि एक डिसेबल पीपल को मिलने चाहिए। लेकिन उस डिसेबल पीपल को जो बेनिफिट मिल रहे हैं, उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बाद उनका एक कार्ड भी बनता है। नहीं, आवाज नहीं आती। परफेक्ट, UDID कार्ड। UDID कार्ड किसके लिए है? डिसेबल पीपल्स के लिए। आधार कार्ड किसके लिए है? हम सबके लिए।